Let's start with the revision quiz of measures of central tendency, right? Which includes mean, median, mode, quartile, decile, percentile. Okay, with different methods. So here we start with our first question. And first question is for Alok. So Alok, tell me, what are the types of mean? Assuming method, step deviation and direct. Okay, but मेरा question था not about methods. Mean के types कौन से होते हैं? Types of mean. Not about its calculation and its method. Types of mean. Yes, perfect. Simple, Yes, simple simple and mean. weight. Yes, simple mean and weighted average mean. Arithmetic mean भी आप बोल सकते हो. Very good. Okay. So next question is for Mehak. What is mode? Define mode. Very good. Alok knows the answer. Yes, Alok, please tell me what is mode. The highest number comes, highest frequency. Where Known as From the highest frequency minus lowest frequency. no, minus कुछ नहीं करना है. और उसकी फॉर्मूला है शायद. No, mode. अच्छा, mode, sorry. Highest frequency, the most repeated number, the most continuous number. जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है, that is mode. है ना? Mehak, what happened? So Hardik, your question is, what do you mean by central tendency? See, central tendency means the figure. Or average. Yes, Alok? I think most or highest frequency is known as central tendency. No, no, no. मैंने तो बुक में से पढ़ा था, बुक में तो ऐसा ही लिखा है. Central tendency is a representation of whole series. जो पूरी सीरीज हम मैंने रिप्रेजेंट वही तो करते हैं. बोला, स्टैटिस्टिकल सीरीज. हाँ, central value. तो it is not a central value. Average. No, it represents the whole series. उसको बोलते हैं central tendency. And Right? central tendency is a branch of descriptive statistics. Next question here is for Mihir. Mihir, what is arithmetic average? Arithmetic average. Arithmetic average is the sum of all the items divided by the total number is called arithmetic average. Mike is absolutely right. Okay. Alok, give me the formula for weighted mean. नहीं पता. Formula for weighted mean. See, it is very simple. मीन में हम डिवाइड बाय किससे करते हैं? टोटल नंबर से. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास वेटेड है. ठीक है. तो वेटेड वाले कॉलम का जो टोटल आएगा दैट मीन्स सिग्मा डब्ल्यू इंटू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. क्लियर? हमको मीन जब निकालना है तो हम लोग टोटल्स जो भी हमारे पास आता है मल्टीप्लाई करके वैल्यू डिवाइड बाय हम लोग टोटल नंबर ऑफ एन या फ्रीक्वेंसीज करते हैं. सो हियर हमको क्या फाइंड करना है? वेटेड मीन. सो व्हाट वी विल डू? सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. Okay, clear? Hardik. Okay. Now tell me the formula if mean, median and mode, all three are to be find out with no series calculation. How can you find? Yes, Alok. Z is equals to 3m
minus 2x bar. Perfect. Yes. 3m minus 2x. Okay. Okay. Easy question now. Hardik. So next question is for Mehak. Mehak, what is the partition value which divide the total set of value into 10 parts? मैम वैल्यू बताओ। क्या बोलते हैं उसको? क्या मेथड है वो? SI Yes. And when it divides into 4 parts, quartile and when it divides into 100 parts? percentile Yes. Good. Name the methods that are used to calculate mean. Come on, Alok. Step deviation, assuming, and direct. Very good. Okay. है ये फॉर्मूला. ओके. 2a plus sigma fi di upon sigma fi. वेरी गुड. ओके. ग्रेट. सही है बिल्कुल आपकी. और एक और है मैम. हाँ. यस. मैम xy is equals to sigma fi ui upon sigma fi. ui a plus sigma fi. एक मिनट. एक हम लोग क्लास लेंथ के साथ भी करते थे. व्हेन इट इज फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, वो भी एक फॉर्मूला है मीन फाइंड करने के लिए. व्हाट इज दैट? sigma fi xi x bar is equals to sigma fi xi into upon sigma fi. वो तो है ही. वो तो आप सही बोल रहे हो. Come on, come on. Tell me. There are various formulas. डायरेक्ट मेथड जब हम करते हैं अरिथमेटिक मीन के लिए, तो उसकी इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्मूला अलग होती है. दैट इज सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. सिर्फ एक्स आई दिया है. ठीक है. डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज की. इसी तरह से जब हम लोग इनडायरेक्ट आई मीन शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं इंडिविजुअल सीरीज, हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है फॉर्मूला. राइट. डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन. स्टेप डेविएशन अभी हमारा सीखना बाकी है, सो उसको एक्सेप्ट कर दो. ठीक है. नेक्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज. ये 3 सीरीज की फॉर्मूलाज हमने पढ़ी है बेटा. जब हम लोग क्लास लेंथ की बात करें तो सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी करके हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर. यस इंटू मैम सी, दैट इज फॉर क्लास लेंथ. है कि नहीं? इसे जैसे मीडियन फाइंड करना है हमको सी वाला, तो L1 प्लस एन अपॉन 2 माइनस डी अपॉन एफ इंटू सी. है ना? Don't forget beta, these formulas are only going to play the important role in this statistics, you know. फॉर्मूला याद है तो सम आराम से कर लोगे आप. जब वेटेड मीन की बात है तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. राइट. और कंबाइंड मीन की बात है तो उसमें भी हमने देखा था एक्स एन इज इक्वल टू एक्स बार 1 एन 1 प्लस एक्स बार 2 एन 2 एक्स बार 3 एन 3 अपॉन जितने भी n हमने फॉर्मूला में लगाए, जैसे 3 लगाए तो n1 n2 n3, इन तीनों का एडिशन. उससे हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ n से. आई बात समझ? राइट. इसी तरह से क्वार्टाइल्स की भी देखी थी हमने. n प्लस 1 अपॉन 4, अगर थर्ड क्वार्टाइल है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 3 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4. राइट. सेम वे अगर हम लोग मोड की फॉर्मूला फाइंड करें तो मोड की फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी कैलकुलेटिव है. L1 प्लस F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into I. इंटू सी. यस, परफेक्ट. इंटू आई बोलो, सी बोलो, दैट इज सेम. परफेक्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. शाबाश. यस. और उसके अलावा अगर हमारे पास मीन मीडियन मोड का रिलेशन फाइंड करना है, अगर हमको सीरीज नहीं दी हुई है तो कौन सी फॉर्मूला लगेगी? सो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2m.
राइट, 3m माइनस 2x बार। फॉर्मूलाज बेटा जैसे मैंने आपको कहा था उसके लिए नोट्स बनाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत सही भी रहेगा। सो आप एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम के दिन सुबह अगर आपको रिवीजन करना है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट नोट्स एंड जस्ट यू कैन गो थ्रू द फॉर्मूलाज फटाफट फटाफट फटाफट। वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा बेटा, सीरियसली टेलिंग यू। राइट, इसी तरह से मीन की अगर हमको कंटिन्यूअस सीरीज फाइंड करनी है तो उसमें भी a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन करते हैं हम। राइट, स्टेप डेविएशन मेथड अभी बाकी है तो उसको हम रहने देते हैं अभी। ओके, this is how we complete our chapter with revision of formulas as well as some kind of objective questions. Right, डोंट फॉरगेट कि इस चैप्टर में से अगर आपको 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, 6 मार्क के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, यू हैव टू बी मोर इलॉबरेटिव, यू हैव टू बी मोर प्रिसाइज टू द पॉइंट टू द आंसर्स। ठीक है, मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ मीडियन, मोड, मीन, राइट, दैट कैन बी योर डिटेल्ड क्वेश्चंस। सो हमेशा याद रखो व्हेन यू आर राइटिंग, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स, स्पेशली अगर आप 5 और 6 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो कोई भी ऐसा ब्रीफ क्वेश्चन और मैंने पूछा है गिव मी द डीमेरिट्स ऑफ मीडियन, मोड या मीन, तो हमेशा उसका मीनिंग एक दो लाइन में आपको लिखना है। अगर मैंने क्वेश्चन में लिखा है डिफाइन मीन एंड इट्स डीमेरिट्स, देन यू हैव टू वेरी केयरफुली थोड़ा 3 to 4 लाइन्स का करके आपको मीन का डिफाइन लिखना ही पड़ेगा। Right, and then you can come up with the points, whatever points are there. Okay, so this is all for today. Rest, if you have any doubt you can always message me, you can always tell me. Google Classroom use कर सकते हो, you are all in a WhatsApp group, so you can use that just if you have any doubt. ठीक है, tomorrow is your exam, so all the best for your examinations. Right, कुछ भी पेपर में छोड़ना नहीं, and I'm not requesting you to be honest, it's my trust that you will be honest for appearing exams, because अभी अगर कॉपी कर भी ली तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, आगे जाके तो उसका कुछ काम नहीं आने वाला है। एटलीस्ट अभी अपने आप लिखोगे, ट्राई करोगे तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे और किस में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। राइट, सो आई होप and I want to be sure that you will be honest for attempting examinations. Right, if Zoom ने हमको कल अनलिमिटेड टाइम दिया तो हो सकता है हम लोग Zoom लॉग इन करवा के फिर आपसे पेपर भी लिखवा सकते हैं। राइट, क्योंकि Zoom कभी किसी दिन दे रहा है अनलिमिटेड, कभी किसी दिन नहीं दे रहा है, सो इट मे हैपन टू दिस। यस आलोक, मैम हमको जो पेपर है वो मतलब पेपर पे लिख के हमको प्राइवेट पे सेंड करना है? यस, प्राइवेट कमेंट, यस बेटा, गूगल क्लासरूम जैसे आपने हाफ ईयरली सबमिट किया था बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, आप पीडीएफ बना के ही शेयर करोगे, दैट इज कंपल्सरी, यू हैव टू। मैम वो जो सर्कुलर आया था उस पे लिखा हुआ था कि 10 to 11 आपको सब